ناظرین آداب، دوردرشن حیدرآباد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ خبروں کے آغاز پر پیش ہیں سرخیاں۔ ریاست میں MLC انتخابات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری، پرچہ نامزدگیوں کا عمل شروع۔ 14 مارچ کو ہوگی ووٹنگ اور 17 کو کاؤنٹنگ۔ اتر پردیش میں مہاراجہ سہیل دیو میموریل کا وزیر اعظم نے رکھا سنگ بنیاد، کہا ملک کی حفاظت کے لیے زندگیاں وقف کرنے والی شخصیتوں کو نہیں ملا مناسب مقام۔ دلی پولیس کی 74ویں یوم تاسیس تقریب، مہمان خصوصی کشن ریڈی کی شرکت۔ ٹریکٹر ریلی کے دوران پولیس کے صبر و تحمل اور رویے کی ستائش۔ مدھیہ پردیش میں نالے میں بہہ گئی بس، کئی افراد ہلاک، ریسکیو آپریشن جاری۔ اور چنئی ٹیسٹ میں ہندوستان کی شاندار کامیابی، 4 میچز کی سیریز 1-1 سے مساوی، تیسرے ٹیسٹ کا 24 فروری سے آغاز۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی ہیں، اب پیش ہیں خبروں کی تفصیل۔ ریاست میں 2 گریجویٹ زمرے کی قانونی ساز نشستوں کے انتخابات کے لیے آج ریٹرننگ آفیسرز کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ صبح 11 بجے سے پرچہ نامزدگیوں کی حصولی کا عمل شروع ہوا۔ محبوب نگر رنگا ریڈی حیدرآباد حلقے کے لیے الیکشن آفیسر کے طور پر گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے ایڈیشنل کمشنر کو بنایا گیا ہے، جبکہ ورنگل کھمم نلگنڈا حلقے کے الیکشن آفیسر کے طور پر رنگا ریڈی ضلع کے کلکٹر کو ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ 23 فروری تک پرچہ نامزدگیاں داخل کی جا سکتی ہے۔ 24 فروری کو پرچوں کی جانچ پڑتال ہوگی، جبکہ 26 فروری تک پرچہ نامزدگیاں واپس لی جا سکتی ہے، جبکہ 14 مارچ کو صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک ووٹ ڈالے جائیں گے۔ 17 مارچ کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اتر پردیش کے بہرائچ ضلع میں مہاراجہ سہیل دیو میموریل اور چتورا جیل کے ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ مودی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے آج مہاراجہ سہیل دیو کی یوم پیدائش کے موقع پر منعقد ہوئی اس تقریب میں شرکت کی۔ اس تقریب میں یو پی کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہندوستان آزادی کی 75ویں سالگرہ کا جشن منانے کے لیے تیار ہے۔ ایسے میں مہاراجہ سہیل دیو کی قربانیوں، بہادری اور ان کی خدمات کو یاد کرنا ایک بڑی خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہاراجہ سہیل دیو کی ایثار و قربانی کو نئی نسل تک پہنچانا ہم سب کا فرض ہے۔ اتر پردیش کے راجپال श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, राज्य के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, संसद में मेरे अन्य सहयोगी, विधायकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने पराक्रम से मातृभूमि का मान बढ़ाने वाले राष्ट्र नायक महाराजा सुहेल देव की जन्मभूमि और ऋषि मुनियों ने जहां तप किया, बहराइच की ऐसी पावन धरा को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। वसंत पंचमी की आप सभी को, संपूर्ण देश को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मां सरस्वती भारत के ज्ञान विज्ञान को और समृद्ध करें। आज का दिन विद्या आरंभ और अक्षर ज्ञान के लिए बहुत शुभ दिन माना जाता है। हमारे यहां कहा गया है, सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने, विद्या रूपे विशाल लक्षी, विद्याम देहि नमोस्तुते। अर्थात وزیر داخلہ جی کشن ریڈی نے یوم جمہوریہ کے موقع پر کہا کہ قومی دارالحکومت میں ٹریکٹر ریلی کے باعث پیدا ہوئی صورتحال سے دہلی پولیس نے انتہائی حسن خوبی سے نمٹا ہے، جو قابل ستائش ہے۔
किशन रेड्डी ने दिल्ली पुलिस के 74वीं यौम तासीस के मौके पर मुनक्किदा परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान नुमाया मुजाहरा करने वाले 66 अफसरान और अहलकारों को मेडल्स पेश किए। इस मौके पर खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि यौम जमहूरिया के मौके पर बाज़ कौम मुखालिफ ताकतें सरकारी इमलाक को निशाना बनाते हुए तशद्दुद बर्पा करने की कोशिश की, जो अमन व अमान को कायम रखने के लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसे दिल्ली पुलिस ने सब्र व तहम्मुल, नज़्म व ज़ब्त के साथ उसे निपटा। उन्होंने कहा कि इस वाक़े में 500 पुलिस अहदेदार जख्मी हुए, लेकिन फिर भी कोई शहरी हलाक नहीं हुआ। किशन रेड्डी ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने कोरोना की मुश्किल घड़ी में भी मिसाली किरदार अदा किया है। मध्य प्रदेश के जिला सिद्दी के रामपुरना एकन थाने में आज एक मुसाफिर बस नहर में गिरने की वजह से 20 से ज़ायद अफराद की मौत हो गई। राहत और बचाव की कार्रवाइयां जारी है। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस में तकरीबन 50 मुसाफिर सवार थे। सुबह तकरीबन 8 बजे यह हादसा पेश आया। 3 घंटों से ज़ायद वक्त के बाद नाशों को बरामद कर लिया गया। मकामी कलेक्टर कुमार चौधरी जाए हादसे पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। महलूकीन की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ मोइनाबाद के इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ट्रेनिंग एकेडमी में आज सुबह पुलिस डॉग्स की पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। इस परेड में रियासत के डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। एडिशनल डीजी जितेंद्र, साइबराबाद पुलिस कमिश्नर सजनार, इंटेलिजेंस डीजीपी प्रभाकर राव और दीगर ने शिरकत की। गुज़िश्ता बरस जून से 8 माह तक तरबियत हासिल करने वाले तेलंगाना और बिहार पुलिस के 50 डॉग्स इस परेड में शरीक थे। लाब्रा डॉग, जर्मन शेपर्ड, बेल्जियन, मेलिनूस व दीगर नस्ल के डॉग्स को यहां तरबियत दी गई है। इनके बशमूल 80 अहलकारों को भी तरबियत फराहम की गई है। वीवीआईपी के दौरों के मौके पर तकरीबी कार्रवाइयों को रोक लगाने और मुश्तबा अशिया की निशानदही के उन्हें तरबियत दी गई है। इसके अलावा मंशियात का सुराग लगाने में भी ये डॉग्स अहम रोल अदा कर सकते हैं। सिंगारेनी कंपनी न सिर्फ कोयले की पैदावार में रिकॉर्ड कायम कर रही है, बल्कि कोयले से पैदा होने वाली आलूदगी की रोकथाम और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में भी रिकॉर्ड कायम किया है। रामागुंडम के दूसरे डिवीज़न के 8वीं कॉलोनी का माहौल सरसब्ज़ शादाब रखा गया है। कंपनी की इंतजामिया की जानिब से बड़े पैमाने पर पौधे लगाकर उनकी निगहदाश्त की जा रही है। ग्रीन कॉलोनी के नाम से मशहूर सिंगारेनी की 8वीं कॉलोनी पर पेश है दूरदर्शन की ये रिपोर्ट। के रामागुंडम के 2nd डिवीज़न की सिंगारेनी इंतजामिया माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दे रही है, जिसके तहत कोयले की कानों, बारूदी सुरंगों पर पौधों को लगाते हुए गुज़िश्ता 20 बरसों से मजदूरों के खानदानों को ताज़ा आबो हवा फराहम कर रही है। यहाँ से आसपास गाँव के लोगों के लिए फलदार पौधे, फूलों के पौधे, सायादार दरख्तों के पौधे मुफ्त में तकसीम किए जा रहे हैं, ताकि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ हो और अतराफ व अकनाफ सरसब्ज़ शादाबी बरकरार रहे। कॉलोनी के अतराफ तकरीबन 527 एकड़ पर सायादार दरख्तों के बशमूल फलदार दरख्त लगाए गए हैं। इस बात की जानकारी डिवीज़न के जनरल मैनेजर वेंकटेश्वर लो ने दी। उन्होंने कहा कि कोयले की निकासी के साथ साथ आबो हवा और माहौलियात को साफ सुथरा रखने पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। प्रति ఒక్క కాలనీ ఇంట్లో ప్లస్ రోడ్ సైడ్ ఇవన్నీ కూడా పూర్తిగా ప్లాంటేషన్ చేసి ఒక గ్రీనరీ కార్పెట్ లాగా దీన్ని అభివృద్ధి చేయటం జరిగింది. అలాగే క్లీన్ కాలనీ రోడ్లు కానీ ఇవన్నీ తదితరమైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచి మంచి వాతావరణం క్రియేట్ చేసి మంచి ఆహ్లాదకరమైన అట్మాస్ఫియర్ ప్రొవైడ్ చేయటం వల్ల కార్మిక కుటుంబాలు సంతోషంగా ఉంటున్నాయి. దానిలో భాగంగానే ఈ కాలనీ యందు 5 పార్కులు, చక్కటి పార్కులు అరేంజ్ చేసి చక్కగా మెయింటైన్ చేసి కాలనీ వాసులకి ఆహ్లాదకరమైన సాయంత్రం పూట కానీ ఉదయం పూట కానీ ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం చేసి వాళ్ళ ఉపయోగానికి ఉంచడం జరిగింది. अजमेर शरीफ में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की सालाना उर्स तकारीब का आगाज़ हो चुका है। अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। इसी दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक चादर नज़र की है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 809वीं उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक चादर नज़र की है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 809वीं उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुसलसल 7वीं मरतबा बतौर नजराना चादर पेश की है।
इधर रियासत भर में भी बसंत पंचमी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। सरस्वती मनादिर में श्रद्धालुओं का हुजूम देखा जा रहा है। रियासत के वजीर एंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने अपने अहल खाना के हमरा सरस्वती मंदिर के दर्शन करते हुए उन्हें पिड्डू चिरा कर नजराना पेश किया। चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया दूसरा टेस्ट मैच हिंदुस्तानी टीम ने 317 रनों के वाज़े फर्क से जीत लिया। इंग्लिश टीम को जीत के लिए दूसरी इनिंग्स में 481 रनों की जरूरत थी, ताहम उसकी पूरी टीम महज 164 रन बनाकर आउट हो गई। इसी तरह 4 मैचेस की सीरीज 1-1 मसावी हो गई। हिंदुस्तान की जानिब से अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा 5, जबकि अश्विन ने 3 और कुलदीप यादव ने 2 विकेट्स हासिल किए। अश्विन को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का तीसरा टेस्ट अहमदाबाद में 24 फरवरी से खेला जाएगा। डॉक्टर अंगोजी ओकानोजो आईवीला को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली खातून डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया गया है। नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर आईवीला साबिक वजीर फिनांस हैं। अफ्रीकी बरआज़म से ताल्लुक रखने वाली पहली शख्सियत हैं जो WTO के इस बावकार ओहदे पर फाइज हो रही है। वो 1 मार्च को इस ओहदे का चार्ज संभालेंगी। इस मौके पर डॉक्टर आईवीला ने कहा कि उनकी अव्वलीन तरजीहात माली और सेहत के शोबों में कोविड से पैदा होने वाले बहरान के चैलेंजेस से निमटना है। अमेरिका बर्फानी तूफान की जद में है। वस्त अमेरिका और जनूबी रियासतों में बर्फानी तूफान की वजह से हालात संगीन बने हुए हैं। कौमी मौसमी खिदमात का कहना है कि 150 मिलियन से ज्यादा अमेरिकी बर्फानी तूफान से मुतासिर हैं। टेक्सास, केंटकी, मिसिसिपी, अलाबामा और दीगर रियासतों में लोगों को घरों में रहने की ताकीद की जा रही है। हुकाम का कहना है कि टेक्सास में गुज़िश्ता 6 दिहाइयों में ऐसी सूरत हाल कभी नहीं देखी गई। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप देखिए फिर से हम सुर्खियां। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। रियासत में MLC इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी। पर्चा नामजदगी का अमल शुरू। 14 मार्च को होगी वोटिंग और 17 को काउंटिंग। उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेल देव मेमोरियल का वज़ीर आज़म ने रखा संगे बुनियाद। कहा, मुल्क की हिफाजत के लिए जिंदगियां वक्फ करने वाली शख्सियतों को नहीं मिला मुनासिब मकाम। दिल्ली पुलिस की 74वीं यौम तासीस तकरीब, मेहमान खुसूसी किशन रेड्डी की शिरकत। ट्रैक्टर रैली के दौरान पुलिस के सब्र व तहम्मुल और रवैये की सिताइश। मध्य प्रदेश में नाले में बह गई बस, कई अफराद हलाक, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और चेन्नई टेस्ट में हिंदुस्तान की शानदार कामयाबी, 4 मैचेस की सीरीज 1-1 से मसावी। तीसरे टेस्ट का 24 फरवरी से आगाज।